terminology we are going to use, everyone must know the basic definitions which are coming under and across this analytical chemistry chapter. Please note down in a rough notebook. Even I'll ask in between anyone to open your video and show me your rough notebook. They must have to show their rough notebook which they have written. I request everyone to write down whatever we are teaching in a rough notebook, at least one paragraph, one line, one word, whatever we are teaching. I'll ask the student to unmute, to open his video and show me the book also. Right? So is that clear? Means then I'll continue with the topic today. Analytical chemistry. So under that, so we are going to deal or discuss mainly the few topics in that. Means the basic terminologies. What is the significance of analytical chemistry? What is the purpose of analytical chemistry or chemical analysis? And how they have been classified, or what are the different type of chemical analysis methods are available? Classical and non-classical methods and their importance. So these topics we are going to deal under analytical chemistry, the basics. So first of all, one must know what is the role of analytical chemistry. हमें analytical chemistry क्यों पढ़ना चाहिए या कहाँ analytical chemistry का जरूरत होगा. ये सिर्फ MLT के लिए नहीं है या biochemistry के लिए नहीं है. Analytical chemistry means analysis of any compound. हम analysis करके बोल सकते हैं कि इस पानी में इतना कैल्शियम है, इतना मिनरल्स है. ये फ्रूट में या जो आप फ्रूट्स खाते हैं ना, उसमें क्या क्या कंपाउंड है एनालिसिस करके बता सकते हैं. केमिकल्स, रिएजेंट्स, उसमें क्या क्या होगा. ऑल द बॉडी फ्लूइड्स, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स है अपने पास, साइनोवियल, पेरिटोनियल, पेरिकार्डियल, ऑल द बॉडी फ्लूइड्स which has what it has also can be analyzed. तो ऐसे ही analytical chemistry हमें बहुत ही important है in different sectors or different fields. वो क्या क्या है यहाँ पे दिया हुआ है आपको. एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें काम आ जाएगा, इनऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में काम आ जाएगा, फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोफिजिक्स, उसमें भी एनालिसिस का काम आ जाएगा. इंजीनियरिंग, सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, उसमें भी एनालिसिस का काम आ जाएगा या एनालिटिकल केमिस्ट्री उसमें भी एप्लीकेबल है. मेडिसिन में, क्लिनिकल केमिस्ट्री में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, फार्मेसी में, टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग को एनालिटिकल केमिस्ट्री का जरूरत पड़ेगा. मटेरियल साइंस मतलब कौन कौन सा मटेरियल में कितने हैं. तो मिट्टी मतलब आप सब जानते हैं ना कि खेती बाड़ी जब करते हैं तो मिट्टी का भी एनालिसिस होता है ना. इस मिट्टी में कौन कौन सा मिनरल्स कितने परसेंटेज में है, उसके हिसाब से किसान को बोला जाता है कि आप इस मिट्टी में आप ये वाला क्रॉप कर सकते हो, ये वाला क्रॉप नहीं कर सकते इस बार क्योंकि इसमें इतने सारे मिनरल्स नहीं है या कम है. वो सब आपको बताएंगे. मिट्टी का भी एनालिसिस होती है ना. तो मटेरियल एनालिसिस, metallurgy, polymers, solid state, social science, archaeology, anthropology, forensics, environmental sciences, ecology, meteorology, oceanography, zoology, geophysics, geochemistry, biology, botany, genetics, microbiology, zoology. इन सब में भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल होता ही है. उन सब में हम बोल सकते हैं कि कितना है, क्या है, ये सब एनालिसिस करके हम बताएंगे. राइट. So next we're going to move to the terminologies or languages which is we are going to use in the analytical chemistry. What type of language or what type of words majorly we are going to use in analytical chemistry means. So every time we use that analysis, the word analysis. Analysis का meaning क्या है? So what is the meaning of analysis word? So analysis means any process that provides chemical or physical information about the constituents
in the sample or the sample itself. कोई भी कंपाउंड आपको जब दिया जाता है उसमें क्या है, कितना है, उसकी केमिकल और फिजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में जब बोलेंगे तो ये है एनालिसिस। अगर आपको एक बुक दिया जाए तो उसकी साइज वो सब शेप देख के बोल सकते हैं कि ये बुक है। आप टेबल देख लिया, टेबल को बोल सकते हैं कि ये टेबल देख के आप बोल सकते हैं कि टेबल है। तो यू हैव एनालाइज्ड वेदर इट इज व्हाट, राइट। तो ऐसे ही एनीथिंग, एनी मटेरियल, उसकी केमिकल एंड फिजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब उसमें क्या क्या है। अगर मैंने ब्लड दे दिया एनालिसिस करने के लिए, तो ब्लड में आप क्या क्या बता सकते हो मुझे एनालिसिस करके? ब्लड में कितना आरबीसी है बता सकते हो, कितना डब्ल्यूबीसी है बता सकते हो, ब्लड सैंपल में कितना प्लेटलेट्स है बता सकते हो, ब्लड सैंपल में कितने पैरामीटर जितने भी है, एलएफटी, एंजाइम्स, आरएफटी की पैरामीटर्स, एलएफटी की पैरामीटर्स, सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कितना ग्लूकोज है, कितना सोडियम है, कितना पोटेशियम है, एवरीथिंग वी कैन एनालाइज एंड वी कैन सी, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। उसकी केमिकल एंड उसकी फिजिकल इंफॉर्मेशन एंड उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है और कितने हैं, प्रेजेंट या एब्सेंट, वो भी एनालिसिस की पार्ट है, या कितने भी है, मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज एनालिसिस। एनालाइट मींस अगर ब्लड दे दिया मैंने आपको, तो ब्लड का एनालिसिस करना है, तो जो कंपाउंड हम एनालिसिस करना है ब्लड में, अगर मुझे सपोज ग्लूकोज एनालिसिस करनी है, ग्लूकोज इज द एनालाइट। अगर सपोज मुझे कोलेस्ट्रॉल एनालिसिस करनी है ब्लड में, तो कोलेस्ट्रॉल इज ए एनालाइट। तो द वर्ड एनालाइट मींस द कॉन्स्टिट्यूएंट of interest of sample which you are measuring in that sample is called as analyte, and the process how you are doing, कैसे वो काम कर रहे हैं, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, वो प्रोसीजर जो बोलते हैं हम लोग एनालिसिस बोलते हैं। क्या मेजर कर रहे हैं उसे कहते हैं हम लोग एनालाइट। So the next word is matrix. All other constituents in a sample except for the analytes is called as matrix. अगर ब्लड सैंपल मैंने दे दिया, अभी जो बोला मैंने, ग्लूकोज चाहिए मुझे, कितना है ग्लूकोज मेजर करनी है, ग्लूकोज इज एनालाइट। बाकी जितने भी कंपाउंड्स है ब्लड में वो सब पाया जाता है कि हमें मैट्रिक्स बोला जाता है। एनालाइट का मतलब है जो हमें टेस्ट करनी है, जो एनालिसिस करनी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं एनालाइट। बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके अंदर है उसे कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। नेक्स्ट द टर्म वी यूज डिटर्मिनेशन। Determination means it is a step or process how you are going to identify particular analyte in the sample by defining its properties, by defining or identifying its nature or concentration. So the analysis of sample to find the identity, concentration or properties of the analyte is called as determination. फाइनली ब्लड दे दिया मैं आपको, ग्लूकोज की टेस्ट करनी है आपको, तो आप ग्लूकोज आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, कितना ग्लूकोज है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन भी बता सकते हो, एंड समटाइम्स व्हाट विल से प्रॉपर्टीज आल्सो वी कैन से ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज है वो भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो दैट प्रोसेस, एनालिसिस ऑफ सैंपल प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड, हाउ मच concentration it is present, what are the properties of that compound or analyte is called as determination. Next is measurement. An experimental, one second. Yes, next is measurement. An experimental determination of an analyte's chemical or physical properties itself is called as measurement. हम ब्लड में ग्लूकोज एस्टिमेट करनी है, तो ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क तो करना पड़ेगा ना, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमिनेशन करने के लिए। वो जो एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन इटसेल्फ इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। सो दैट्स व्हाट, सो दीस आर द बेसिक टर्म्स in analytical chemistry. What is analysis, what is analyte, what is matrix, what is determination, and what is measurement. There are some other
terms are there? So we'll just go through further. What are the basic terms which are coming under analytical chemistry? Okay. Next is the word accuracy and precision. अब ध्यान से सुन लेना सब लोग. Accuracy and precision दोनों क्या होता है? एक्यूरेसी का मीनिंग ये है, अगर मैंने एक बंदे का सैंपल आपको दे दिया, ब्लड सैंपल देके टेस्ट करने के लिए बोला गया, आपने ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कर दिया उसमें, और उसमें आप जब टेस्ट करने के बाद आपकी वैल्यू था 85 mg/dl. आपने ये बोला गया टेस्ट करने के बाद, सर इसमें जो ब्लड आपने दिया है उसमें ब्लड ग्लूकोज वैल्यू जो है 85 mg/dl दिया है. What is the value, exact or correct value or accurate value of that sample is already known. उसमें कितना ग्लूकोज है मुझे ऑलरेडी मालूम है, मैंने टेस्ट कर लिया, दैट इज ट्रू वैल्यू. सो ट्रू वैल्यू था 87 mg/dl. ट्रू वैल्यू मतलब जो एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू, करेक्ट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सैंपल, that is called as true value. So that accuracy means the measured value which is nearer to the true value is called as accurate. अगर मुझे मालूम है कि अगर ये ब्लड सैंपल मैंने दे दिया तो ये टेस्ट वैल्यू कितना आना चाहिए, 87 mg/dl आना चाहिए, दैट इज अ ट्रू वैल्यू. मैंने सेम सैंपल आप सब लोगों को दे दिया, आप सब लोगों को सेम सैंपल दे दिया, तो क्या आना चाहिए अगर टेस्ट करने के बाद 87 आना चाहिए, बट किसी ने बताया 85, किसी ने बताया 90, किसी ने बताया 110, किसी ने बताया 80, किसी ने बताया 82. किसका वैल्यू एक्यूरेट है? आप कैसे बोल सकते हैं कि किसका वैल्यू एक्यूरेट और ट्रू वैल्यू है? उसमें जिसका वैल्यू ट्रू वैल्यू से नजदीक है, जैसे मैंने बोला 87 इज द ट्रू वैल्यू, जिसका वैल्यू उसके करीबन में है, मतलब 86 हो या 85 हो या इस तरफ 88 या 89, उतना ही है. नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू विच इज कॉल्ड एज एक्यूरेट वैल्यू. तो मतलब जो बंदे जो वैल्यू मुझे बताया गया कि 86 हो या 88 है, they have done correct and that is the true value, and remaining people is not the accurate, so they are called as accuracy or accurate values. Next is precision. Precision means मैंने सैंपल आपको दे दिया टेस्ट करने के लिए, जैसे आपने बताया कि किसी किसी का 86 था, 88 था, तो मैंने बोल दिया कि ट्रू वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू है. नियर टू द ट्रू वैल्यू इज इटसेल्फ इज कॉल्ड एज एक्यूरेट. तो प्रिसिशन का क्या मीनिंग है? बार बार या 10 लोगों को जब मैंने सैंपल ले दिया, 10 लोग मुझे यही बताया कि इसका वैल्यू 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85. Same value if it is coming repeatedly, it is called as precise values. आप कितने भी बार टेस्ट का एनालिसिस करो, उस सैंपल एनालिसिस करो, हर एक बार 85 ही आती है. रिपीटेड वैल्यू विच इज नियर टू द ट्रू वैल्यू. अगेन ऐसा नहीं कि ट्रू वैल्यू उसका 87 है और प्रिसिशन वैल्यू इज 110 है, तो वो गलत है, वो रॉन्ग है. ट्रू वैल्यू से नजदीक ही रहना चाहिए, बट सेम वैल्यू इफ इट इज कमिंग रिपीटेडली देन इट इज कॉल्ड एज ए प्रिसाइज्ड वैल्यू बोलते हैं. So this is the difference between accuracy and precision. So giving accurate value, giving precise value after the analysis is very much important. कितनी बार भी करो सेम वैल्यू आना चाहिए, ये भी, और जो वैल्यू आप टेस्ट किया तो ट्रू वैल्यू से नजदीक रहना चाहिए, ज्यादा फर्क नहीं रहना चाहिए.
तभी हम बोलते हैं कि वो एक्यूरेसी 100% वो सही है, एक्यूरेसी का मीनिंग। नेक्स्ट इज द वर्ड वी यूज सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी मीन्स इट इज द डिग्री टू विच द मेथड इज फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंसेस प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। मतलब अभी जो मैं ग्लूकोज टेस्ट करनी है, ब्लड दे दिया आपको, ग्लूकोज टेस्ट करनी है। अब जब ग्लूकोज टेस्ट करना है तो ब्लड सैंपल में बाकी जो कंपाउंड है वो सबसे कोई इंफरेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमें ग्लूकोज ही चाहिए जब मेजर कर रहे थे। वो टेस्ट मेथड में अगर ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज भी मेजर कर रहा है तो वो गलत है, तो वी आर नॉट गेटिंग द एक्यूरेट वैल्यू। तो सेलेक्टिविटी मींस so the method which you are using that should only select glucose for its measurement. If I want glucose for testing, it should not select any other compounds in the matrix. Matrix का मीनिंग ऑलरेडी बताया मैंने। जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो कंपाउंड आप एनालिसिस कर रहे हैं वो हो गया एनालाइट, बाकी जितने भी कंपाउंड्स है तो वो हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जितने भी कंपाउंड्स है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो कंपाउंड हमें एनालिसिस करना चाहिए उसी को हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेलेक्टिविटी। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मींस द एबिलिटी ऑफ द मेथड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस इन द एनालाइट। सेंसिटिविटी का मीनिंग ये है, कोई भी एक मेथड आप सिलेक्ट कर रहे हैं, हाउ मच सेंसिटिविटीज, अगर ब्लड ग्लूकोज ही आप टेस्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन मेथड, आपको जानना चाहिए। इसमें अगर आपके ब्लड में ब्लड ग्लूकोज 10 है, सिर्फ 10 mg पर डीएल है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कितना होता है 100 to 150 mg per dl or 90 to 150 mg per dl is the normal blood glucose levels। जिसके ब्लड सैंपल में अगर 10 mg per dl ब्लड में ग्लूकोज है, तो आपकी जो एस्टिमेशन मेथड हो, रिएजेंट्स हो या केमिकल्स आप जो यूज कर रहे हैं, डिटरमिनेशन के लिए जो मेथडोलॉजी यूज कर रहा है, वो मेथड 10 mg per dl को मेजर कर सकती है क्या? अगर ब्लड में लो ग्लूकोज है मेजर कर सकती है या नहीं कर सकती? या हाई ग्लूकोज है जिसके ब्लड में 700 mg पर डीएल है और 800 mg पर डीएल है, ये मेथड हमें बताएगा कि ये मेथड से हम मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी। व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ ब्लड ग्लूकोज मेथड? ब्लड ग्लूकोज जीओडी पीओडी मेथड हम जनरली यूज करेंगे, उसकी सेंसिटिविटी इतना ही है, वो मेजर कर सकते हैं सिर्फ 40 mg पर डीएल तक ही मेजर कर सकते हैं। अगर आपके ब्लड में 40 mg पर डीएल से कम है ग्लूकोज, उस मेथड से आप वो जो केमिकल से हम लोग मेथड से मेजरमेंट नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी। Selectivity, so it is defined as degree to which the method is free from interferences from other components present in the matrix, as I said already in the previous terms. Next we are using dynamic range. It is a concentration range from limit of quantification to limit of linearity. डायनेमिक रेंज कितना है, लिमिट ऑफ लीनियरिटी कितना है, लिमिट ऑफ डिटेक्शन कितना है, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन कितना है, यही जो आपने बताया सेंसिटिविटी की जब बात कर रहे हैं तो ये सारे आ जाएंगे। हम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करनी है तो हमारे जो मेथड है कितने mg से कितने mg तक ब्लड में ग्लूकोज है तो तब दिखा सकते हैं। अगर जो मेथड हम लोग यूज करें जनरली जीओडी पीओडी मेथड ही मान लो, it can only estimate up to 40 mg per dl से लेके ब्लड में 400 या 500 mg per dl तक की मेजर कर सकता है। उससे ज्यादा भी हो उससे कम हो तो उस मेथड वो फेल्यूर है। तो वी कैन नॉट मेजर लेस देन 40 mg per dl, आप कभी रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उस मेथड में आप मेजर ही नहीं कर सकते 20 mg per dl, तो हाउ कैन वी रिपोर्ट? दैट इज द क्वेश्चन। सो दीज आर द टर्म्स व्हिच वी आर यूजिंग। हाउ मच मेजरमेंट or determination of particular component
from the blood sample or any analysis, unlike which we can do, how much we can, what is the quantification range, कहां से कहां तक हम मेजर कर सकते हैं, कितना mg से कितना mg तक कॉन्सेंट्रेशन में हम मेजर कर सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट और जो मेथड हम लोग यूज करके, दैट इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ लिनियरिटी, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन एंड डायनेमिक रेंजेस. नेक्स्ट वर्ड वी आर यूजिंग टेक्निक. तो कोई भी हम लोग टेस्ट करना चाहिए तो एक टेक्निक होगा उसका. जीओडी पीओडी इज अ टेक्निक. अगर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेट करना है, क्रिएटिनिन एस्टिमेट करनी है, जाफ्रीज मेथड इज द टेक्निक. एक एक कंपाउंड टेस्ट करने के लिए वी आर यूजिंग डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टेक्निक्स. देयर विल बी सम मेथड how we are going to do the process, that is called as method, application of technique for the determination of a specific analyte in a specific matrix. कोई भी टेस्ट करना चाहिए लैब में तो आपके पास क्या होगा, एम होगा, उसके प्रिंसिपल होगा, व्हाट इज द apparatus which you are using, आपको पता होना चाहिए, what is the method which you are going to estimate, and what is the procedure and how you are going to calculate. ये सब तो जानना ही चाहिए ना. कोई भी टेस्ट करना चाहिए तो ये बेसिक है. कौन सा टेक्निक हम यूज कर रहा है, कौन सा मेथड यूज कर रहा है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू एस्टिमेट दैट पर्टिकुलर एनालाइट फ्रॉम दिस सैंपल. तो ये कॉमन टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में बिल्कुल यूज करेंगे, राइट. सो नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ केमिकल एनालिसिस. द मेन पर्पस ऑफ केमिकल एनालिसिस is to characterize the, it's not only the, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये ओवरव्यू बात कर रहे हैं ना, तो एमएलटी के लिए ही नहीं है, एक ओवरव्यू बात कर रहे हैं कि पूरा एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में क्या होता है, राइट. तो रॉ मटेरियल को कैरेक्टराइज करनी है हमें, assess the chemical safety of the product, control the environment. That is the purpose of chemical analysis. Analysis in general classified is two types, that is based upon the nature of information required and based upon the size of sample material, analysis can be done. So analysis can be done in different ways, which is called as proximate analysis, partial analysis, trace analysis and complete analysis. I'll just show you. Just wait a second. Right. So proximate analysis, partial analysis, trace analysis and complete analysis का क्या मीनिंग है? तो proximate analysis मतलब, so amount of each element which is determined with no concern of sample. सैंपल से कोई मतलब नहीं है, हमें जो एलिमेंट चाहिए हम लोग उससे हम लोग निकाल सकते हैं. Example, proximate analysis of coal, which includes determination of moisture, volatile compounds, ash content, fixed carbon. कोल में कितना मॉइस्चर है, वोलेटाइल कंपाउंड्स कितने हैं, एश कंटेंट कितना है और कार्बन कंटेंट. सो एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट. प्रॉक्सिमेट मतलब जितने भी है उसके अंदर या उसकी सारी की सारी कहानी हम लोग एनालिसिस करके बताना चाहिए कि उसे कहते हैं हम लोग प्रॉक्सिमेट. पार्शियल मतलब थोड़ा सा सैंपल हमें दिया एनालिसिस करने के लिए. पार्शियल एनालिसिस मतलब हम लोग पूरा सैंपल हमने कुछ भी डिटरमाइन नहीं करेंगे, उसमें थोड़ा सा ही टेस्ट करेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें जरूरत है उसी को हम टेस्ट करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल एनालिसिस. ट्रेस एनालिसिस, determination of specified components in the sample in a
वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, मतलब बहुत ही लेस क्वांटिटीज में हमें उसमें से जो कंपाउंड चाहिए तो उसे हम मेजर कर सकते हैं ट्रेस। ट्रेस मतलब बहुत कम है, बहुत कम क्वांटिटीज में हम लोग कंपाउंड्स को उसमें अंदर मेजर करना चाहिए जो सैंपल दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेस। कंप्लीट एनालिसिस मतलब जितने भी कंपाउंड्स उसके अंदर, अगर मैंने ब्लड दे दिया या यूरिन दे दिया, यूरिन का कंप्लीट एनालिसिस बोल दिया, तो यूरिन का फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री या केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होता है, फिजिकल एनालिसिस क्या क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस क्या क्या होती है, वो सारे के सारे के बारे में हमें बताना चाहिए। मींस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन में भी यूरिन को देखना चाहिए, केमिकल एनालिसिस करके उसमें क्या क्या कंपाउंड्स, क्या क्या केमिकल्स यूरिन के अंदर है, फिजिकल एनालिसिस में व्हाट इज द स्टेट एंड व्हाट इज द कलर, वो सब हमें बताना चाहिए। तो वो है कंप्लीट एनालिसिस। एनालिसिस करने के लिए बोला गया तो वो हो सकता है इन चारों में कोई एक हो सकता है, इट में भी अप्रॉक्सीमेट और इट में भी पार्शियल और इट में भी एनालिसिस और ट्रेस एनालिसिस और इट में भी कंप्लीट एनालिसिस हो सकता है। So on the size of the sample, how the samples can be analyzed means, so there are three types you can say: macro analysis, semi-micro analysis, and micro analysis. Macro means ranging from 100 mg to more than 100 micrometers. Means bigger sizes of analysis means बड़े compound जो analysis करेंगे macro. Semi-micro means medium वाले. Micro means very less, very minute quantities. The sample ranges we are going to analysis is called as microanalysis. Classical method and non-classical methods of analysis are available. So, अगर मैंने यूरिन बता दिया, यूरिन का भी केमिकल मेथड्स होगा, यूरिन डिटेक्शन करने के लिए फिजिकल मेथड्स भी हो सकता है. So, यूरिन केमिकल मेथड्स are classical methods, physical methods are non-classical methods. We can see. So, advantages of classical methods. So classical methods are chemical methods which are simple procedures. अगर आपको यूरिन में क्लासिकल मेथड करनी है तो यूरिन में ग्लूकोज कितना है, यूरिन का प्रोटीन कितने हैं, वो सिंपल एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स आर देयर, कितना ml कौन सा रिएजेंट आपको डालनी है तो आपको क्या है उसमें अंदर पता चलती है, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिकल प्रोसीजर्स. दैट इज सिंपल प्रोसीजर्स है, चीपर इक्विपमेंट्स है, नो स्पेशल